So, shall we start now, sir? Yes, sure. No problem. Am I audible clearly? You are audible. You're perfectly audible. Okay. So, a very good morning, everyone. Today we are here really fortunate to have very esteemed teacher, scientist, and role model for every aspirants who are seeking career as CSIR scientists. There is a proverb that learn from those who tried and motivate every talent to be successful in life. We humbly welcome Dr. S.M. Bhatt, who has 3 patents, more than 100 research papers, and book chapters like published in international journal like Springer, Nature, Elsevier, and Taylor Francis. He has served in past as a director research and R&D, director research R&D, and currently serving as the HOD of AGC Amritsar University, and also the founder of Merit Life Sciences. So we request him to start with his motivational speech and please guide us how we can crack CSIR with our unending efforts. Thank you so much, Suparna, for so much nice welcome speech. And always the students are main motivational factor for me. So I thought I should deliver a lecture over various challenges, because if your planning of journey is not perfect, then no one can qualify or no one can achieve any success in life. However, we may be very talented, very genius, but if we are not utilizing properly our resources, then we are going to face failure in the life. So here we are going to discuss some challenges, because I am teaching from last 4 years, right? So Corona was almost nil. 2 years, so you can minus 4 minus 2. This is almost 2. Okay. So, and if you have query, you can ask me in between. And I have guided so many students. So many students have qualified also CSIR. Am I audible perfectly? Yes, sir, you are. Okay. So let us discuss challenges and their solutions. So what are the basic challenges and what are the goals of the lecture? The first main problem, what I have seen, that students' time management is the biggest challenge, biggest problem, right? And then how to crack MCQs, because MTA score is basically its accuracy score, what we have planned in our app also. So I suggest all the students who are watching me in the live Facebook now, on the YouTube, and here joined on the Zoom also, and many students are still waiting because registration process is there, so it will take time, so they may join in between. So no issue. And if they are unable to join because of time management, what I have said, because of this time management, I have informed in the evening, I informed in the morning, I delayed 30 minutes late, and still there are more than 50 students in the group, and I have shared in more than 10 students groups, okay, shared on the Facebook, but the students are lacking perfectly time management. That's what I can see the biggest problem in qualifying the CSIR. So we will discuss how to solve question from section ABC, because there are 3 parts of the CSIR life sciences, and then we will take questions from the aspirants. Okay, so a few questions. Why students are getting constantly low score despite of first attempt, second attempt, third attempt, fourth attempt? So any guesses from you people? Mahmood, am audible to you? Please be interactive. Yes, sir. Introduce yourself. Sir, my name is Mahmood, sir. Yes. From Telangana. Okay, most welcome. Sir. And from which institute you are? You had finished your masters? In Nagarjuna University, sir. Acha, Nagarjuna. Nagarjuna. I am known to that university, right?
So, how many attempts you have appeared in the CSIR? 2 times, sir. Second, 2 times. 2 times. And what was the score? But 50 plus, huh? Maybe Yes. 50 plus. So, in what challenges you have faced? What do you think that this is the main reason mainly of C-section, sir. Mainly I confused in the C-section? Right. Okay, that may be the biggest problem, right? Okay. And any other problem during the preparation? No, sir. I didn't get any proper material, sir. I didn't have any proper material. Okay. That is the second Okay. problem, sir. Already you told now, sir, that is a time management. There is a lack of proper preparation. Because biggest factor in achieving today's competitive life is the time management. Because if you are day by day you are failing in achieving the goals, then how you can think that you will achieve the goal in the last moment? Okay, that is the biggest problem. Samantha, what problem you are facing during your preparation, and what is the reason of low score? Yes, sir. That's the first problem is my time management, which is really impossible to join classes in time, and also getting time for preparing those notes which we have covered in the class in time also. That's the main thing, sir. Otherwise, there is no problem. And practicing MCQ. How much you are Yes, practicing sir. MCQ, Mahmood? So MCQs, I am doing more than 10 per day, sir. Okay. So that must be of a good quality, na, MCQs. Then you are Yes. expecting less time, because Mahmood said na ki good quality notes they are lacking. Right, Mahmood? What do you mean by the good quality notes? What do you think by the good quality notes? This is also a question mark. I think Right. these are basic concept we need, sir. That is Yes, that's very good. Good quality notes means it should start with the conceptual notes, conceptual things, and then it should proceed to the advanced thing, right? yes, sir. It should go with the advanced thing, right? Yes, Any sir. other thing? Any other No, sir. thing? Concept to advance. Okay. And based on the these notes, there should be easy to hard MCQs, so that immediately you can check your concept, right? Immediately Yes, you can sir. check your concept, and the main problem is fixing the concept, because whenever you are getting the practical aspects, practical questions in the examination, then you are finding whatever you were knowing, that knowledge is not sufficient enough to mark the right questions. Am I right? Am I right, Pooja? Hello, Pooja. How are you? Am I audible? Yes, sir. Yes. So, Mahmood, I am asking a question. What Sir. problem you are facing during the solving the MCQs in the examination? When you are solving the question paper actually, then what problem you are facing? Pooja, am I audible? Yes, sir, you are audible. So let me remind what we are discussing. We are discussing the challenges. Actually, it happens with us, na. So when in the examination hall, na, then we have to. It took a lot of time to memorize all the things na, that we have read. Yes. Because Yes. earlier we have read a lot of stuff, and it took a lot of time to memorize the thing that what we have read and what the thing is right, and we have to choose between 4 options, na. And many often you might be knowing the correct thing, but you are marking the wrong. That's why you are getting the negative
marks, and when you are out of the hall, examination hall, then you got to remind that this was the right answer. Here I just forgot. Am I right? Exactly. This is the things happening. What do you say? Yes, sir. This is the first thing we encounter whenever we are So what do you coming out of think? that. What do you think? How you should improve your scores? Means fixing. There should be proper notes, good quality notes. First thing, what Mahmood has suggested, right? And second thing, everyday time management. Everyday time management and good quality notes should be provided by the institute or teacher. That will be helpful. That will be time saver, right? That will be time saver. And also if the notes are containing MCQs based on the concept, based on the advanced material given in the text, okay, then this will be helpful in fixing the concept. Am I right? Yes, sir, you are. This can be one solution. Starting with the good quality notes. That is the biggest thing. Yeah, notes should cover a lot of things, a lot of materials, right? For example, if I'm talking about the genes and genomes, there is no ending of genes and genomes, and no teacher or no coaching can expect or can claim that they have covered all these things, right? For example, you are talking about the gene regulation, suppose, right? So can a teacher claim that they have covered everything in the notes, or any book can claim that everything in the notes? No. Then what is the solution? Making the notes wisely. You should prepare your notes wisely. And how you can prepare the notes? Because everyone talent is different, right? Everyone is differently genius. Okay. So they can plan by themselves according to their capacity. Someone might be well aware of the genes. If you are not well aware of the genes, then how you can expect when the teacher is going to give you the lecture regarding the gene regulation, and then you will catch over the all concept. Am I right? Because teacher might be giving you the operon concept, but if you are not clear about the gene cluster, means keywords, basic keywords you must be knowing, then again you are reflecting over the time management and proper textbooks. Am I right? Proper textbooks. Yes, sir. You have the proper sufficient textbook according to your need, right? Because there are so many authors, thousands of authors are there over the one subject, and everyone has their own meaning, own way of teaching the same thing, right? And grasping power is also different in different students. Suppose I am from the central CBSE schools, then I may have the different kind of capturing power based on our schooling pattern, right? And for example, if our college is not so much good, our teacher we are not so much good, then what we can do, we are totally helpless in that. So what we should do first, पहले हमको क्या करना चाहिए? Go over the syllabus. Syllabus देखो पहले. What we can do? ये तो सबसे easiest and first task है. And whenever, suppose you have given the second attempt or third attempt, no matter, कभी भी ये मत देखो हमने कितने attempt दिए. And always feel positive. Don't feel negative. Most of the students thinking they are counting over their failures. Am I right, Mahmood? Suparna? Pooja? Yes, sir, you are. We are counting over the failures. Why we are not counting over the success? Yes, sir. Because Yes, sir.
brain has a limited capacity. Medulla oblongata, I think you might be knowing. They have the limited memory capacity like hard disk. Understand first your brain. Then you can qualify, you can crack any examination in life. Never count your past failures. Rather than learn from the mistakes. What we should do? Learn from mistakes. What mistakes we did? What mistakes we committed? For example, हमने syllabus proper study नहीं किया. हमने time कहाँ waste किया. अपना note बनाओ कि कहाँ पे हमने learn from the failures. क्या हमने mistake की और क्या mistake नहीं करनी है. Always have a good notebooks. अपनी लाइफ की जिसकी नोटबुक होगी वही सक्सेसफुल होगा. व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर. तो हमने टाइम वेस्टेज कहाँ की. मान लो सपोज महमूद स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बिकॉज गर्ल्स आर शाई एंड दे डोंट वांट एनीथिंग. तो चलो हम तुम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी. कितने बजे उठते हो बेटा? व्हाट इज योर टाइम एग्जैक्टली व्हेन यू आर अवेकिंग इन द मॉर्निंग? 6 o'clock. 6 o'clock. Right. And then when you are going to institute or anywhere? No, sir. You are not going I'm to working. then acha, you are working. So official time? Yes, Official time? 9 to 7, sir. 9 to 7. Now see, you cannot count this into your working or preparation. Am I right? This is negligible. And also 2 hours before and after 2 hours. ये भी मिस कर दो. 1 hours मान लो यहाँ पे कर लो. Because you need to prepare yourself, na? Right? Sir. So Yes. if you are waking on the 6 o'clock and then finishing your busy schedules over the 8 p.m., then how much time have you calculated? How much time you have left? How much time you left for 3 hours. preparation? Only 3 hours. Only 3 hours. And if this is engaged somewhere, then what will be the result? क्या result होगा सुपर्णा? What will the effect? Yes, zero efforts. So your days start with the zero effort because you are not counting, you are doing this for your livelihood. So this is the actually main thing behind this, na, that we are not able to give proper time as we all are working now. So we all are busy somewhere now. I am also working. So how I am managing the time? That's what this session is over. How you can manage your best time. Now everyone is having the 24 hours and because you are mature enough, right? I am also having the family. I am having the responsibility of my children's, my classes, my teachers, as a head of department, as an institute reputation, because every week I have to plan something. Okay. So suppose I'm just giving my example so that indirectly you can learn. Suppose this is having the 1 class, 2 class, 3 class, 4 class, 5 class, and my time management is start with the time engagement is 9 to 5 p.m. every day in the institute where I am working, right? And all these classes are there, and I am the responsibility of all the teachers. Suppose I have the 12 teachers, right? And then I have to talk about the events, okay? Because every second week I must give something events, because if I'm not conducting events, then every system will go to sleep, because this is events kind of recharge system. You're getting my point? So then what I'm doing now, I'm doing everything. Sunday is my planning day, where I'm utilizing the Sunday, because suppose this is the first month and this is Sunday, right? Then I can divide the complete schedule into the months. So how many months we are having? Suppose we are starting from the Jan.
So this is Jan, Feb, and up to December, right? Suppose now we have exams in the November. Schedule our CSIR exam is scheduled in the November, and this is the first week. Okay. After that, what will happen? After that, what will happen? Only result will come. So, what is suggestion here? Stop your preparation in the month of October. At least 1 month before. This is kind of planning I am suggesting. How we are planning? How we can plan? Because if the plan is perfect, never you are going to dilute your efforts. You are utilizing because you are knowing everything, and then the pressure will be on you over your brain. Okay. So means you have to stop everything in this month, October. So how many months you are having for the preparation? Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right? And suppose you are sick or you are facing any problem, then you can lose complete month, because sometimes you are losing 1 week, sometimes you are losing 2 weeks. You don't know. So actually, this thing has happened with me earlier, na? Actually, I was sick for almost 3 to 4 months. Right. I think in 2019, when I was preparing for my exam, na, then suddenly something happens to me that I was totally bedridden. Yes. For this is 4 obvious. to 5 months now. This is obvious reason, because you know when I started, I was thinking I will start batch from Feb 22. Then suddenly I was fell ill, and it was so serious. I was so serious. I cannot explain. Samantha was there, and many students were there. Continuously, I was rescheduling the classes. Right? Yes, sir. So what I'm calculating, we have 9 months, cut 1 month, so we have only 8 months to prepare. Right? This is our target. This is our goal. Now, everything starts with time management. Okay. Suppose now it's clear ki how much month we are having. Tell me. Yes, sir. Only 8 months we are having. Correct. Right? Yes, We are having only the 8 months. Now, 1 month, how many days you are counting? I am counting it 25 30 days. days. No, I am counting 25 days because Sunday is a recharge day also. Okay. If you are not recharging yourself, then the whole week energy will be down. Okay, you are not feeling recharge, you are not putting 100% effort with full zeal. You need full zeal to work, full zeal to attack, because you are extracting the knowledge, and you can extract the knowledge when your brain is full recharge. So don't do anything I suggest over the Sunday. Utilize full sleep day. What you should do, because you are working. Full sleep day. I am never given any test on the Sunday. You have watched that, you have observed that. Always I am scheduling my class according to the body clock. You know body clock? You know body clock? What is the body clock, mind clock? Biological clock, you know? Yes, sir. This is called as the body clock. So if you are mentally preparing your body for anything, any time, any schedule, then only you can utilize your powerful brain into work. Because here physically we have not to work. CSIR preparation is what? This is totally Mental division. mental work, totally 100% mental work. Mahmood has shared has one problem, that he is facing problem in solving section C. How many of you are facing problem in solving the question from section C? Tell me. Pooja, Suparna?
Are you facing the same thing? Not so much, sir, Not because so. Yes, sir. last time na I have scored quite good in section C, because I think I have prepared very well na. I was totally focused and I have read it. I will not say that I have read everything, but the thing that I've read now, that was totally clear to me. That's So what I'm that's pointing. yeah. I'm pointing. That's why, yes. If That's your why I was exam able is to. So actually, I just where I lacked na, that was section A. And the second thing where I lacked was the time management, na? Because I just I agree with the point that I have done section C very well, but I just give all my time to section C. I think approximately 2 hours, na? 2 hours for the section C, and I was left with only 1 hour, na? And within that, I think 45 minutes. I'm not able to remember the time properly. And within 45 hours, I have to do both the sections now. So this was the main problem with me, that I was not able to manage the time. And the second thing that I have tried very less questions ना. जैसे हम practice question करते हैं, वो मैंने बहुत कम किए थे, तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वही है कि वो दिक्कत रह गई थी मेरे साथ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि अगर करे होते तो शायद मैं जल्दी फास्ट करती उनको। करे थे बट उतने नहीं करे थे जितने करने चाहिए थे मुझे। एंड दूसरा ये, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। एंड तीसरा ये कि मैंने जो प्रिपरेशन शुरू करी थी वो मैंने 2.5 महीने करी थी, बट आई वाज टोटली डेडिकेटेड दीज 2 months ना। मतलब मैंने पता नहीं कितने कितने आवर सिटिंग करी थी। आई थिंक 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैंने पढ़ाई करी है बैठ के, तब जाके मेरा सिलेबस मतलब। हाँ, syllabus is too vast. What we can say? Yes, इससे बहुत ज्यादा है। अगर हम सोचें कि सब कवर होगा तो फिर नहीं हो पाता। Syllabus is too vast. That's what I am pointing. कि plan well. If you are planning well, for example. वही चीज है, बट इतनी सारी चीजों को अगर हम सिलेबस सपोज करो सारा कर भी लें, सर इतनी सारी चीज को याद रखना और उस टाइम पे मेमोराइज करना सब बहुत मुश्किल है। यस, उसी पे आ रहा हूं मैं कि देखो ये 1 मंथ हमने रिचार्ज मंथ रखा है, रिवीजन मंथ, ठीक है, ये कंप्लीटली रिवीजन मंथ रखा है। अब अगर ये रिवीजन में हमें कुछ ऐसा मिले, इफ आई एम कलेक्टिंग ओवर द गोल्ड rather than the silvers, right, then they can be helpful in cracking the exam. Do you agree with that? So what is gold? This is notes, very important notes, where that is you are confusing, making mistakes. Suppose I am taking the test on Saturday, right, and you are getting only 80% accuracy score, means it's showing 20 questions almost you did wrong, right? So what you are doing after that, that is important, and that is called as the goal. That effort is called as the goal. Getting my point? Yes. Why? Because suppose you have covered at least 6 to 7 units very well. Very well means you have prepared very well. You read the text thoroughly. You are analyzing all the experimental facts, right? But during the practice sessions, during the MCQ, during the test, what you observe or your teacher is observing that you are just qualifying 50, 60 or 80 percentile or accuracy score, means your 30 to 40% questions you should have made the command. And what we are doing, we are leaving over that, we are proceeding over the next lecture. So obviously our effort is here 0, and that has not been converted into the gold. That is the biggest issue. Getting my points? So sometimes I think this problem now might occur that we are from different backgrounds now. And No. What I'm saying, देखो, we are all life sciences students, right? So yes, for the graduation or degree purposes,
that have been divided into the life sciences, zoology, botany, environmental science, microbiology. But whenever you are appearing in the CSIR examination, you have to cover everything. You have to know the everything, because whenever you don't be knowing the exactly what happening in the PhD, nothing is given from your topic. A problem is given in your topic, right? And guide is asking from wherever you can solve, you should solve. They are not sticking to the zoology, botany, biotechnology, or technology, physics, chemistry. There is a no boundary. Okay, that's why the syllabus is compiled in the CSIR. Have you observed that syllabus? Why there is a 3 sections from 11 to 13 is very important every time. Very, very important, because mostly student at the end of preparation is starting from unit 1 and hardly they are reaching up to unit 6 or 7. And most of the students are not touching these sections because these are quite analytical, right, mathematical, okay, and based on the techniques. Because most of the students don't have much experimental procedure exposure, right? That's why Yes, sir. kind of these technical sections are very, very tough. And you know, whenever you are, suppose you have qualified the JRF also, I have seen many students are not able to join as a PhD in any good laboratories. Why? Because these 3 sections are poorly understood by them. Whenever you are going, your guide is asking about the techniques. For example, we were discussing recently about the how you will know. Samantha asked the question, how will you know at which position that your regulator is binding at the genome? How we are knowing about the -35 and -10? Which technique is exactly involved in telling this kind of theoretical sections? कैसे पता चला हमें ये -35 -10 है, यहाँ पे रेगुलेटरी कौन सी टेक्निक है? अगर इसको थॉरोली हम जाएं तो हमें फिर ये पॉइंट याद ही नहीं करना पड़ेगा कि दिस प्रोटीन has a fixed position of binding at promoter site -35 -10. And also during the reading we have a very faulty mindset. That's why we are not grasping properly. So main issue is not time management. Main issue is analysis and grasping and planning management. And suppose, moreover, you just identify your problem, what I'm saying. Identify your all the problem. तो हमने क्या क्या प्रॉब्लम अभी नोट किया, अभी नोट कर लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस में। एक तो सिलेबस में मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या मार्क किया अभी? यूनिट 1 में पिछले साल देखोगे आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया था, अभी बायोकेमिस्ट्री से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, राइट? तो मैंने इसको छोड़ दिया पढ़ाना क्योंकि दिस इज द मोस्ट लेंथी सिलेबस यूनिट 1 और ज्यादातर इंस्टीट्यूट इस पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट वेस्टेज. नाउ द करंट सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 3 years अगर पेपर का देखोगे तो दे आर मोर फोकसिंग ओवर द सेल बायोलॉजी यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सिक्वेंसली 5, 6, राइट? ये यूनिट पे बहुत ज्यादा फोकस है. एंड देन 11 to 13. अब कहां गया? 7, 8, 9, 10. दिस इज द especially part of zoology and botany, right? तो जब ये टाइम बचे, what I'm saying, make a mastery over this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now anyone can grasp a good command over these how many units? 7 units, right? And in the end, if time is permitting, then you can go via all these first, including the first 1, 7, 8, 9, 10. यानी कितना हो गया? 5 हो गया. 5 मिनट्स को बाद में करते हैं. सर आपने अभी बोला जैसे यूनिट 1 में से कुछ भी नहीं आता. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ना दैट आर कनेक्टेड विद यूनिट 1. अगर हम यूनिट 1 ना देखें तो फिर व्हाट आई एम सेइंग, कॉन्सेप्ट में क्लियर ही नहीं होंगे सर. आई एम सेइंग अबाउट द मास्टरिंग द सब्जेक्ट. अगर आप देखो पिछले सेशन में यूनिट 1 से कुछ भी नहीं आया. दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. लाइक अगर पीएच आपको नहीं पता है
यू आर राइट। अब बफर नहीं पता है तो यू कैन नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम इफ दे आर आस्किंग अबाउट द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अमीनो एसिड, राइट, बिकॉज यहाँ पूरा तो खेल ही सिर्फ बफर सिर्फ पिछली बार नहीं आए थे, बट अगर हम बात करें तो उससे पिछली बार से हर बार क्वेश्चन आता है बायोकेमिस्ट्री में से। दैट्स व्हाट आई एम मतलब सेइंग, जितना सा मैंने यस इसको ये मैंने कहा टाइम टेकिंग बहुत है, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल तैयार नहीं करना है, राइट। मास्टरी मतलब यहाँ 1 से मंथ करनी लग है, जाता है सर आराम से इसको। ये पूरा 1 मंथ ले लेता है। आप इसको पार्ट में बांट के Yes, स्टडी करो, पार्ट में स्टडी करो, ठीक है, बिकॉज इट्स इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स, देयर आर ऑलमोस्ट 12 chapters in this unit 1 alone and a lot of discussion। मैंने इसमें बीच में पढ़ाता हूँ, मैं प्रोटीन का पढ़ा देता हूँ, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री, प्रोटीन केमिस्ट्री, डीएनए केमिस्ट्री, और इसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर है वो इसमें से पढ़ा देता हूँ, पीएच बफर काइनेटिक्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए टाइम टेबल मैं अपने लिए बनाता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन आई एम डेडिकेटिंग, 2 days आई एम डेडिकेटिंग फॉर द बायोकेमिस्ट्री एंड रेस्ट सर एक चीज और पता क्या, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हमें बीच में 2 दिन ऐसे 2 दिन ऐसे, सर ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। पता क्या, जैसे हम लोग का एक पैटर्न चला होता है ना कि हम लोग जैसे आपको पता है टॉपिक्स हमेशा लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, तो अगर हम लोग एक ही पहले वो खत्म कर ले तो वो ज्यादा ठीक रहता है, ताकि बच्चों को भी क्लियर लगे हमने ये चीज करी है, अभी हमारा ये वाला सब्जेक्ट कवर हो चुका है एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट वन। सर वो ज्यादा ठीक नहीं रहता है, ऐसे बीच में कभी एक बीच में करा रहे हैं, कभी दूसरा, सर तो ऐसा तो बच्चे के लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। नहीं, कभी वो पढ़ेगा कभी वो पढ़ेगा, मतलब आधे कॉन्सेप्ट कभी नहीं कंफ्यूजिंग होता। मैं बताऊं कैसे, देखो, बिकॉज अंडरस्टैंड योर ब्रेन कैपेसिटी, मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, नॉट शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, राइट। हमारा ब्रेन ये कहता है कि इफ आई एम डूइंग वन थिंग ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो आवर लर्निंग ग्राफ विल गो down because we are not motivated. Always brain is motivated by the new things. Have you observed that? जब हमें नया कॉन्सेप्ट मिलता है, नई थिंग्स मिलती है, अब हम देखो सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, हमें लग रहा है यार बार बार हम वही पढ़े जा रहे हैं, राइट। और हमारे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अरे अभी तो हम यूनिट 2 में ही है और हमारा सितंबर में एग्जाम है, अभी हमारा अप्रैल आ गया। देन वी कैन डू वन थिंग ना, अभी मैं आपको रोक रही हूँ, देन वी कैन डू वन थिंग इज, जैसे आप 2 hours का क्लास लेते हो ना, तो 1 hour वी कैन शेड्यूल फॉर वन सब्जेक्ट एंड फॉर अनदर 1 hour वी कैन शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट ना, आल्सो ओके, मतलब अगर इफ यू वांट कि आप चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये ना बेटे छोटे बच्चों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, अगर आप बड़े बच्चे हो, राइट, ठीक है ना, तो ये चीजें वर्क नहीं करती, क्योंकि आई हैव ए वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने ये देखा है कि पहले तो अपना शेड्यूल सेट करो कि आपको कितना टाइम बचता है, जैसे उन्होंने कहा 3 hours बचते हैं, राइट। तो 3 hours तब बचते हैं व्हेन यू आर अवेकिंग एट 6 o'clock, 6 AM। मैं मेरा शेड्यूल है 4 AM का और स्लीपिंग शेड्यूल है 12 PM। अक्सर मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं उनको इंटरेक्ट करता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ या लेक्चर नोट्स बना रहा होता हूँ, देन मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करता हूँ उस टाइम पे, मीन्स आई एम यूटिलाइजिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम फॉर माई स्लीप। 12 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का या 5 बजे तक मैक्सिमम आप कर लो, ठीक है। और ये तब घटाना पड़ेगा, आप 11 AM कर लो, 11 AM to 5 AM कर लो, अगर आपको इतने लंबी स्लीप चाहिए। कम से कम ये भी कितना हो गया, 6 hours की हो गई, राइट, एग्री। तो अगर ये चीज फिक्स हो जाती है कि हम 11 PM पे सो जा रहे हैं, 5 AM पे उठ जा रहे हैं, तो आप देखो 5 AM to 6 AM हमने सपोज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ ली, ठीक है। 6 to 7 हमने थोड़ी बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली, राइट। 7 to 8 क्योंकि हमें अपनी भी प्रिपरेशन करनी है बिसाइड द क्लासरूम प्रिपरेशन। क्लासरूम का तो एक अलग मोड होगा कि टीचर चलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहा है तो हमने यहाँ पे रीशेड्यूल कर लिया कि चलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा हटा देते हैं, राइट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कर लिया। अब हमें क्या टाइम मिल गया कि 8 to 9, 1 घंटे का मिल गया ऑफिस जाने के लिए, रिटर्निंग ओवर द 5, यूटिलाइजिंग 1 over more, ठीक है। 6 PM तक हमने अपना यूटिलाइज किया, मतलब इसमें थोड़ा स्लीप कर लिया, सो लिया। बिना सोए तो ब्रेन आपका दोबारा रिचार्ज नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को चाहिए ATP, राइट। On brain barrier, have you heard about the blood brain barrier?
Yes, sir. Yes, sir. ब्लड ब्रेन बैरियर का ही प्रॉब्लम है कि हम थक जाते हैं, क्योंकि एटीपी इंस्टेंटली नहीं जा सकती, इसमें कुछ भी आप खाओ पियो कुछ भी नहीं जा सकता। द इंस्टेंट आइडिया इज स्लीप। कोई भी सिस्टम आपको रिचार्ज नहीं कर सकता अगर आप बहुत थके हो तो। केवल एक चीज कि आप सारा कुछ बंद करो, रूम सारी बिल्कुल कीप क्वाइट एंड जस्ट गो ओवर द स्लीप। आप अगर 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स भी स्लीप करते हो, देन यू विल फील द डबल ग्रैस्पिंग पावर, मीन्स 2 to 20 टाइम, 20 to 30 time more grasping, because grasping power depends on the activity of the brain. If your brain is not active, then everything is in front of me. I cannot grasp a single word. Do you agree? So what I am saying कि पहले तो एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट में एटलीस्ट हमें कितना मिल रहा है, 3 hours का मिल गया, ठीक है, सुबह। एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर वर्किंग पीपल। क्यों? क्योंकि शाम को बिल्कुल उनकी एनर्जी आउट ऑफ द वे है। यू कैन नॉट इवन थिंक, यू कैन नॉट टेक द डिसीजन, जस्ट यू कैन टेक द क्लासेस ले लिया, नोट्स बना ले लिया, कुछ लिख लिया, राइट। बट मेन एनालिसिस का जो टाइम है आपका ये 3 hours है। हम लोग क्या करते थे, मैं तो अभी भी 4 o'clock पे उठ जाता हूँ, तो 4 to 5 मेरा टाइम चला जाता है मुझे खुद को प्रिपरेशन करने में। जैसे मैं योगा करता हूँ, टहलता हूँ, है ना, थोड़ा भजन सुनता हूँ, फिर आके नहाता हूँ, तो आई एम देन रेडी एट 5 o'clock। 5 o'clock पे मेरी बुक उठ जाएगी, लैपटॉप उठ जाएगा। एंड ऑल्सो जो मटेरियल, महमूद ने कहा कि मटेरियल, तो यू शुड कैलकुलेट कि वॉट एवर द मटेरियल यू नीड, सो दैट आपका टाइम सेवर हो। तो टाइम सेविंग पे, जब टाइम कम हो तो you should make effort over the time saving. How you can save the time? Because syllabus तो बहुत ह्यूज है, आप उसमें कुछ मैजिक नहीं कर सकते। तो टाइम सेविंग कहाँ कर सकते हो? तो टाइम सेविंग, एक तो अपना 5 to 8 का फिक्स शेड्यूल रखो। इसमें आप क्लासेस का जो भी चीज है या तो रिवीजन कर रखो, या तो थोड़ा सा एनालिसिस, सेल्फ स्टडी एनालिसिस कर रखो। तो ये कर सकते हैं सारे, आप तीनों कर सकते हो ये 5 to 8 का। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ से जाओ तो कुछ लेके, सर नॉट पॉसिबल फॉर मी। ट्राई कर सकते हो ना, 5 to 7। सर तब भी पॉसिबल, सर नहीं तो पॉसिबल होगा, बिकॉज आई हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स ना। हाँ, सर वो भी नहीं होगा। 5 to 7 हो जाएगा। सर वो भी नहीं होगा मेरे से, मुश्किल है। सर आई हैव टू गेट अप एट मतलब वही around 5:30 and I have to just do the household chores. Now I have to cook for me and my family, and so after that at 7 o'clock I have to take class na, 7 to 8 and after। हाँ, फिर कितने बजे फ्री होते हो? 8 o'clock पे फ्री होते हो? 8 o'clock पे, then after 8 again I have to take class and I free at around 10:30 or 11 मान लो। and yes sir, and after that again I have to cook my lunch, and again I have to, yes I have to do all the household chores, and I just got only one hour free in between, in the afternoon only na. So, means you are not getting any single hours especially for your study purpose, है ना? Yes, कोई भी sir. आवर्स आपके So लिए this is अवेलेबल नहीं। मैं कैसे करता हूँ, चलो मैं बताता हूँ, हो सकता है आप उससे लर्न कर लो। एग्जैक्टली एवरीवन नीड एटलीस्ट 5 to 6 hours ऑफ स्लीप, ये मैंडेटरी है, यू कैन नॉट डिनाई। Yes sir. ठीक है। सो सी द टाइम वेस्टेज आप देखो कहाँ पे हो रहा है, और कौन सा टाइम अवेलेबल है जिसमें आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे ज्यादा ब्रेन मेरा जो एक्टिव होता है वो होता है 4 to 8 में होता है AM। इसके बाद होल डे आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट आई हैव लर्नड। ठीक है, मैं कुछ भी नया ग्रैस्प नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, मेरी ये बचपन आज से रही है, ये हैबिट है। व्हेन आई वाज young in the masters, even preparing for the CSIR, even I have prepared for the IAS, I have qualified pre-IAS, है ना। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हमने क्रैक किए हैं। तो ये हमें सिर्फ यही क्रूशियल टाइम 4 घंटे का मिलता था, बाकी मैं कुछ भी अफोर्ड कर लूं पूरे दिन हमारा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वंस यू टुक द फूड, ठीक है ना, फिर खत्म।
पूरी एनर्जी तो बॉडी की चली गई आपको खाना डाइजेस्ट करने में। शाम को फिर आप कहीं टीचिंग में एंगेज हो गए, है ना, मतलब आप या तो फिर 10 बजे रात में फ्री होते होगे, वट एवर आई एम गेसिंग पूजा, है ना? Yes, sir, around 10 or sometime at 10 to 11. 12, हाँ 10 to 12, Yes, और sir. ये आपका मेन स्टडी आवर्स होगा। तो कुछ बच्चों का ये लेट Yes, आवर्स sir. स्टडी आवर्स होता है, जिसमें वो दे कैन फोकस की, बिकॉज ये टाइम थोड़ा फ्री होता है Yes, sir. ना, शांत होता Yes, है sir. बिल्कुल। तो So अगर मेरी आप बहुत बचपन ज्यादा, से ये आदत रही है, मतलब हाँ लेट नाइट स्टडी करने की। आई फील क्वाइट कंफर्टेबल एंड मेरा हाँ माइंड बहुत एक्टिव रहता है रात के टाइम पे। हाँ, अगर मैं ये अर्ली आपको, मॉर्निंग बोलूंगी तो आई यस, फील स्लीपी। हाँ ये कई लोगों का ये होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड ना, कि सी योर बायोलॉजिकल क्लॉक। आई एम नॉट एनफोर्सिंग एनीथिंग कि Okay. दिस इज राइट और रॉन्ग। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को देखो, उसी पे स्टिक किए रहो, और उसी में आपको टाइम वेस्टेज रोक के थोड़ा बढ़ा लेना है। जैसे 2 आवर्स अगर मिल रहे हैं तो आपको ये 3 आवर्स कैसे करोगे, क्योंकि स्लीप का परफेक्ट टाइम आपको 6 आवर्स से कम नहीं होना चाहिए अगर आप मेमोरी को इनहेंस करना चाहते हो। इफ यू वांट टू learn a lot of things, you want to memorize for longer period of time, तो एक तो आपका फूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना, हेवी फूड ना हो। फूड शुड बी रिच इन द प्रोटीन डाइट, ये हमेशा याद रखो, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन डाइट में अच्छा, रिच उससे हो। एनर्जी मिलेगी और वी विल फील लेथार्जिक ना। हाँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं। एंड मेरी तो हैबिट टी की है। मैं आपने देखा था कि मेरा टी जो है, आप क्लास ले रहा हूँ, तो अगर ये नहीं होता तो मैं अभी सो गया होता। तो टी मेरी हैबिट है। तो आप ये देख लो कि आपके लिए क्या रिचार्ज है। किसी के लिए मिल्क हो सकता है, किसी के लिए कोई शेक हो सकता है, किसी के लिए जूस हो सकता है ना, तो वट एवर मेरे यू लिए लाइक। चाय होती है। हाँ, हमेशा याद रखो कि एनिमल की हैबिट है फूड, और एनिमल इज एक्साइटेड बाय फूड, अवेकन बाय फूड, रिचार्ज बाय फूड, और फूड इज द मेन थिंग, एवरीथिंग यू कैन से, एवरीथिंग इज द फूड। तो अगर पढ़ते समय भी अगर फूड आपके आसपास नहीं है ना, फूड नहीं है, या थोड़ी म्यूजिक नहीं है लाइट, या थोड़ी सी वो हलचल नहीं है ना, तो देन आफ्टर 30 मिनट्स यू विल फील स्लीपी। ठीक है, और नोट्स लेने की हैबिट जरूर बनाओ, बट फर्स्ट हाफ एन आवर में कोशिश करो कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसका ग्रैस्प कर लो कॉन्सेप्ट, ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट इन फर्स्ट 30 मिनट्स। अगर ये क्लियर हो गया, देन यू विल सी कि कितना भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट एनी वे, क्योंकि फर्स्ट 30 मिनट्स इज स्ट्रगलिंग पीरियड व्हेन यू जस्ट थिंकिंग अबाउट स्टडिंग द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन 30 मिनट इज द स्ट्रगलिंग पीरियड फॉर ऑल, इधर मे बी टीचर, मे बी स्टूडेंट्स, मे बी एनीवन। 30 मिनट्स तो वो बिल्कुल ब्रेन में ना एक मैप एक तरह से कह लो बनाना पड़ता है कि क्या पढ़े, क्या है यूनिट, क्या है, ए लॉट ऑफ थॉट इज गोइंग ऑन। तो दैट्स व्हाई महमूद ने कहा कि नहीं, हमारा बिल्कुल स्टडी मेटेरियल परफेक्ट हो। परफेक्ट वर्ड के तो कोई खैर कोई नहीं है। तो आपको पहले तो स्टडी मेटेरियल, कुछ पॉइंट्स मैं भूल गया बताना कि क्या एसेंशियल्स है जो आपके पास होना ही चाहिए, जो आपको ये टाइम सेविंग करेंगे। एसेंशियल्स में है पहला तो आजकल लैपटॉप के बिना आप रह नहीं सकते। मैनेज योर लैपटॉप, फर्स्ट थिंग, गुड क्वालिटी लैपटॉप, ठीक है, गुड क्वालिटी मतलब कम से कम दे शुड हैव 8 GB रैम, 100 GB स्पेस, विदाउट इसके तो आपका चलेगा नहीं, ठीक है ना। लैपटॉप रखो। दूसरा, नोटबुक रखो, ऑलवेज प्रिंटेड सिलेबस रखो, सॉफ्ट कॉपी नहीं। कुछ चीजें होती है सॉफ्ट कॉपी, कुछ चीजें होती है प्रिंटेड। प्रिंटेड में क्या क्या रखोगे, सिलेबस तो मस्ट है, मेक योर स्टडी शेड्यूल, ये भी प्रिंटेड में होना चाहिए कि अगर आपने मार्क किया कि आज ये स्टडी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस इवेंट, तो यू कैन काउंट कि यार महीने में हमारा इतने आवर्स चला गया, हाउ टू मैनेज, तो वो थिंक ओवर कर सकते हो। फोर्थ चीज, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, प्रिंटेड सारी चीजें हो मटेरियल। एंड जो नोटबुक कर रहे हो प्रिंटेड में क्या होगा, तो देयर आर सो मेनी टेक्स्ट बुक्स एंड सो मेनी स्टडी मटेरियल, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, वहां भी शेयर होते रहते हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, मतलब बाढ़ आ गई है स्टडी मटेरियल की। एंड अगर आपने गलत ट्रैप हो गए, वंस यू ट्रैप एट रॉन्ग प्लेस, तो वहां से निकलने मतलब इट्स अ काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग, इट्स अ काइंड ऑफ टाइम वेस्टिंग, टाइम ही वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो भी है कि आपको वो प्रिंट लेना है जहां पे टेक्स्ट बुक, जहां के जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर देखोगे तो मैं जीन 7 को बहुत परफेक्ट मानता हूं।
ठीक है ना। तो मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम वेस्टेज को नोट करो। लैपटॉप आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग यू कैन ओपन द लैपटॉप, यू कैन रिवाइज द थिंग, यू कैन सी द पीपीटी, यू कैन सी द नोट्स, राइट। और टेक्स्ट बुक का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट ले लो और यूनिट वाइज लो, ठीक है ना। और इसमें मार्क करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फिगर्स, ठीक है ना। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। गेटिंग माय पॉइंट। एक तो सर एसेंशियल्स एक में चीज सारे, और, जैसे हाँ, आपने बोल दी सर, जैसे आपने बोला ना अभी कि टेक्स्ट बुक्स का प्रिंट ले लो, सो दैट्स फाइन, बट द थिंग इज दैट कि सर उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इन द टेक्स्ट बुक्स एंड नहीं सबका नहीं लेना है। एंड जैसे मान लो हमने कहा कि बेसिक का तो लोगे, जैसे रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जिसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो यू कैन टेक ओवर द प्रिंट, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इसी के ऊपर सारी क्वेश्चन है, जीन एनालिसिस, जीनोम की। अब जैसे कल मैंने पूछा था जीनोम वाइड रिपीट्स, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार से इसी शहर में, जीनोम वाइड रिपीट क्या होता है, जीनोम वाइड क्या होता है, राइट। तो आपने जीन एंड जीनोम का कहीं अच्छा मिल गया जिसपे आपका बहुत कमांड नहीं है, जिसमें बहुत सारी चीजें नई जुड़ी हैं, इंफॉर्मेटिव, जिनको रिवीजन करने की जरूरत है, उनका प्रिंट लेने की बात कर रहा हूँ। हाँ आप बोलिए। ओके। इकोलॉजी में जैसे बहुत सारे नोट्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग होते हैं, तो जो अच्छा मिल गया, जैसे सडनली आज मिला मुझे, अगर प्रिंट नहीं लिया तब सोचो क्या होगा कि कल वही क्वेश्चन आया उसी में से, और फिर बाद में मुझे पता चला यार ये दिमाग में आई थी बात, लेकिन हमने प्रिंट नहीं लिया इसलिए मिस हो गया। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो 1 मंथ रिवीजन है, तो ये इसमें हेल्पफुल है आपका ये प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि आपको बिल्कुल लैपटॉप में जाने का टाइम नहीं है, सॉफ्ट कॉपी खोलने का टाइम नहीं है, टेस्ट अटेंड करने का टाइम नहीं है, उस समय ये प्रिंटेड बुक्स और नोटबुक आपका काम आता है। ध्यान रखो ये 1 मंथ में जो होता है रिवीजन, और यही बच्चे वो हैं जो क्रैक करते हैं, जिन्होंने इसकी प्लानिंग कर ली होती है पहले से। क्योंकि लास्ट मोमेंट में ना तो टाइम है आपको, ना तो इतना फाइंड आउट कर पाओगे। क्योंकि मैंने सजेशन किया लेनेजर बहुत अच्छी बायोकेमिस्ट्री बुक है, लेकिन आपको नहीं लगी अच्छी, आपको स्टायर अच्छी लग रही है। हमने एटीपी का मैकेनिज्म पढ़ाया लेनेजर से सपोज, लेकिन आपको स्टायर का बहुत अच्छा लगा, लॉजिकल लगा, बहुत अच्छा लगा, तो यू हैव टू टेक द प्रिंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अनइम्पॉर्टेंट है। तो आपने मार्क कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट है और हमें लास्ट मोमेंट में वो रिवीजन करना है, तो आप नोटबुक बनाने से बच गए। यू हैव सेव्ड योर लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग द नोटबुक। नोटबुक नहीं बनाना पड़ा। एक चीज सर और, सर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है सर, क्योंकि वो भी बहुत वास्ट है सर, तो हमें वो टच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी? मैं बताऊं कि सीएसआर का एंगल क्या है क्वेश्चन का, व्हाई हाउ सीएसआर क्वेश्चन आर फ्रेम, पहले तो ये समझो। सेक्शन ए, बी एंड सी पार्ट में, राइट। तो अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड से हो और फिजियोलॉजी की बात कर रहे हो, तो ये यू मस्ट रीड फॉर द सेक्शन बी, ठीक। सेक्शन सी में उसके टच होने की संभावना है। सेक्शन सी इज मोस्टली, दिस इज कॉल्ड द एनालिटिकल सेक्शन, एंड दिस इज द यूटिलाइजिंग और मोस्ट ब्रेन पावर। तो अगर मान लो मैंने 3 दिन से मैं सोया नहीं हूं, 3 दिन से खाया नहीं हूं, और मैं 9 से 12 एग्जाम देने जा रहा हूं, तो ऑलमोस्ट माई ब्रेन विल बी डेड ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस सेक्शन। Sir, this happened with me last time ना, actually this happened with me last time. मेरे को मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एंजाइटी हो जाती है कि अभी एग्जाम आने वाला है, सो मैंने बहुत सोने की कोशिश करी इवन, बट आई वाज नॉट एबल टू स्लीप फॉर 3 days प्रॉपर। एंड सर एग्जाम में मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे एग्जाम दिया है, बट जैसे मैंने देखा रिजल्ट जो भी था बाद में, तो मुझे ये था कि एटलीस्ट मैंने जितना, मतलब मेरा माइंड उतना फोकस नहीं था, बट फिर भी मैंने जितना अटेम्प्ट किया था इट वाज ओके, मतलब ठीक था। जैसे सेक्शन सी में आया स्कोर गुड, सेक्शन बी में ओके था, एंड मतलब जैसे मुझे लगा था कि हाँ मैंने अटेम्प्ट करा, मैंने नींद में पेपर अटेम्प्ट करा था लास्ट टाइम, तो जितना भी अटेम्प्ट करा था। इसी वजह से मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपर लास्ट 3 years में मेरे कोचिंग से हुए हैं या जो भी हैं, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट टारगेट ये करो पूरे ईयर्स की 50% यू हैव टू सॉल्व विदाउट मिस्टेक फ्रॉम सेक्शन ए। यहाँ पे कितने क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में 25 है, 35 करने हैं आउट ऑफ 50। यस सर, 35 आउट ऑफ 50, यहाँ 25 आउट ऑफ 75, यहाँ पे आपको करने होते हैं 15 आउट ऑफ 30, नहीं 15 आउट ऑफ 50। यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं है।
30. 30 होता है? हाँ 15 out of 50 सर. Yes. 15 आउट ऑफ 15 है. इसे 15 ही होता है. तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता. यहाँ पे मिनिमम यू हैव नो स्कोप. इफ यू वांट टू क्रैक, जस्ट यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व 7 क्वेश्चन, मिनिमम 7 क्वेश्चन. ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन ये होना ही चाहिए अगर क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा 35 में इन्होंने 32 कर लिया. ठीक है, 25 में 22 कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट दे वन 94 to 97 स्कोर. ठीक है, लेकिन ये मिसिंग होने की वजह से ये सेक्शन ऐड नहीं हुआ. तो इसलिए जिस बच्चों ने ये सेक्शन किया उनका स्कोर रहा 98 to 99. गॉट द आइडिया? बट सर इसमें वो भी तो रहता है ना हम लोग का कि नेगेटिव मार्किंग है सर. तो इतना 35 में से 32 अटेम्प्ट करना तो तभी रहेगा अगर हम लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट. 50 क्वेश्चन में से आपको पहला बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि सीबीटी हो गया ना, तो सीबीटी इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक. तो आपको क्या करना है कि आपको स्किप करना है क्वेश्चन को. जैसे क्वेश्चन देखा, आपको आया, टिक करो, छोड़ो, फिर टिक करो, छोड़ो, जो टफ है छोड़ते जाओ. मतलब 50 क्वेश्चन में से, और एक पेपर रखो जिसमें आप मार्क करो कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं सही सही. और जो मान लो आपने 35 में से सिर्फ 25 आपका ऐसा था जिसमें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया मतलब. ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का रह गया ना, 10 क्वेश्चन में रहना है. फिर आप बैक जाओ एंड देन आप उसमें से सेलेक्ट करो कि चलो 90% किसमें श्योर हो, तो वो चीज आप अवॉइड करो. यही तो हम टेस्ट रेगुलर जो प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं सैटरडे को, उसमें यही तो प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको ये देखना है, प्लानिंग करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे 98 तक लाते हो आप बिना तैयारी की. यही तो स्किल है एनटीए में कि आप करते कैसे हो. आपको चॉइस भी तो अच्छी खासी मिल रही है. हम तो अपने टेस्ट में चॉइस भी नहीं देते, आपने देखा ना. अब देंगे, नेक्स्ट बार से देंगे, वो सॉफ्टवेयर में हमने डलवा दिया है प्रोविजन, ओनली दो क्वेश्चन विल बी काउंटेड जो आप करोगे. तो अभी तो आपको इसमें 50 में से 35 करने हैं. 30 भी अगर आप कर लेते हो तो यू आर नियर टू सिलेक्शन. और ज्यादातर बच्चे जो मेरे टॉपर्स बच्चे हैं वो कहते हैं सर 2 दिन पहले हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, 1 महीने पहले रिवीजन स्टार्ट कर दिया था, और जाते ही पहले सेक्शन सी पे अटैक किया, क्योंकि सबसे ज्यादा माइंड को थकाने वाला सेक्शन है. सो मैं भी यही करती हूँ. सबसे पहले सेक्शन सी पे उल्टा चलते हैं, सेक्शन सी देन सेक्शन बी देन सेक्शन ए. हाँ, कभी भी ये नहीं कि आप सेक्शन ए पे टूट पड़ो या सेक्शन बी पे. यहाँ एनर्जी बहुत नहीं देना है. ये तो आपको जनरल नॉलेज, माइंड बहुत एक्टिव होता है ना पहले सबसे ज्यादा, तो फिर वो ठीक रहता है. फर्स्ट आवर्स में, फर्स्ट 1 आवर्स आपको इस पे देना है. फर्स्ट 1 आवर्स आपको इस पे देना है. ठीक है. Any other question? I think I have given all the answer of all the queries. मैंने ये जो टारगेट किया था इसका, लेट मी चेक वंस अगेन, मैंने क्या प्लान किया था और कितना अचीव किया, क्योंकि नोट बनाना जरूर. हाँ, ये गोल ऑफ लेक्चर, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू क्रैक एमसीक्यूज, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन एबीसी कर लिया, क्वेरी फ्रॉम एस्पायरेंट्स आपका भी देख लिया हमने. तो ये डेली ये काम किया करो तुम लोग. अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट क्या है टास्क, उसको कब करना है. डू नाउ वाले में होता है अर्जेंट में, ठीक है ना, और नॉट अर्जेंट में डू नेक्स्ट आ जाएगा, और डू नेक्स्ट या डू लेटर. ठीक है, या सबसे अनइम्पॉर्टेंट जो काम होता है इग्नोर करो. ये थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बतानी थी. एंड देन क्वेश्चन ये हमने ले लिया, हाउ टू इम्प्रूव स्कोर्स. स्कोर में आप डेली मतलब कोशिश करो कि जितना ज्यादा आप यूनिट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो. पर्सनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, पर्सनल डाइट का बहुत ध्यान रखो. ठीक है ना, डाइट सब कुछ है. अगर आप कहोगे डाइट कुछ भी नहीं है, तो डाइट इज एवरीथिंग, है ना. आपकी थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, आपका सब कुछ. हेल्थ खराब है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चल भी नहीं पाओगे, उठ भी नहीं पा रहे हो, तो देन हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे. सवाल ही नहीं उठता है. प्लानिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, डे वाइज, मंथ. हाँ बोलिए सर. जैसे वो बुक्स आती है ना अपने क्वेश्चंस की, जैसे अमेज़न पे मिल जाती हैं सर, तो वी शुड परचेज दैट और नॉट.
बिल्कुल परचेज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, अगर मान लो 2-3 बुक लेते हो तो आपको वैरायटी तो मिलेगी ना एटलीस्ट। Yes, हम sir. ये नहीं So कहते can you कि कोई भी suggest some good book for us? हाँ, आई कैन सजेस्ट। एक किताब हमने खरीदी है, तो वो उसकी कवर पेज में स्कैन करके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? Okay, तो sir. वो आप ले सकते हो। उसमें कंपाइलेशन है 2018 तक के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, 2016 तक का। उसके बाद अपडेट है, लेकिन क्वेश्चन की कलेक्शन बहुत अच्छी है 2005 से। सर उसमें जो है वो चैप्टर वाइज है या फिर मिक्स क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आते हैं? मिक्स क्वेश्चन यूनिट वाइज है। Okay. यूनिट वाइज है। होल बुक हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 13 यूनिट्स, ठीक है? सिर्फ यूनिट वाइज है उसमें? हाँ, यूनिट वाइज है। तो इसमें 2 पार्ट के, यूनिट वाइज सेक्शन बी और दूसरा पार्ट है यूनिट वाइज सेक्शन सी, ठीक है? एक तो वो हार्ड कॉपी में भी क्वेश्चन रखो, और जो भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए उसको अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम एनरोल कर लो कहीं पे, है ना? कम से कम उसी टाइम के बहाने, जैसे कल शेड्यूल अनाउंस हुआ कि कल टेस्ट है, तो आज फोर्स दे के आप तैयारी तो करोगे। आप ये मान के चलो कि वो रियल टेस्ट है आपकी लाइफ का, ठीक है? तो फिर पूरी एनर्जी आ जाएगी आपको कि अरे यार टेस्ट है, पढ़ लो, थोड़ा 2 घंटे ज्यादा लगा लो, क्या हो जाएगा, है ना? एक ही दिन का तो टेस्ट है, पूरे हफ्ते फिर आराम करना है ना? थोड़ा रिवीजन कर लो। तो जब एक टेस्ट में फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट वीक आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी। फिर सोचो कि यार मंडे को भी थोड़ा रिवाइज कर ले, थोड़ा ट्यूसडे को भी रिवाइज कर ले, थोड़ा वेडनेसडे भी कर ले, और जब आएगा आपको टेस्ट में तो देन यू सी द स्कोर एंड यू विल बी ग्लैड कि आपने कर लिया। तो जैसे ये 90 आपने मेंटेन कर लिया 10 टेस्ट में, तो आप कॉन्फिडेंट हो, जब टेस्ट में जा रहे हो तो आपका 98% आएगा। अब तो हम अपने टेस्ट में सेक्शन ए भी डालने जा रहे हैं, सेक्शन बी सी तो ऑलरेडी होता ही है, ये भी डालने जा रहे हैं। उसका वीडियो लेक्चर भी हमने बना दिया है, सारा नोट्स इसका रेडी है, वो भी हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं। Okay. So one thing is that how to avoid the negative mark in section B. How to avoid mistakes in section B, right? Yes, sir. Yes, sir. I'm telling you. There is a negative strategy of selecting the right answer. हम लोग करते कि हम लोग की जनरल हैबिट से हम लोग मार खाते हैं। फर्स्ट, कई क्वेश्चन में नॉट लिखा होता है, तो वी फॉरगेट टू रीड द नॉट, और हम लोग जो सही है वो मार्क करके चले आते हैं। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट लिखा है और हम क्या मार्क करके आए हैं? करेक्ट। एक तो रीडिंग मिस्टेक है, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन में एक आता है कि एक तो ये मिस्टेक करते हैं, दूसरा एम्बिगुअस क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैचिंग वाले। अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चंस मैचिंग के होते हैं सेक्शन बी में, एंड दिस इज द इजीएस्ट वन विदाउट मिस्टेक। तो हमें ये, अगर मतलब मैं आपकी जगह होता तो आई शुड लुक फॉर 15 मैचिंग क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव मी स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 मार्क्स। समझ गए? इसमें आपको कोई ना कोई हिंट मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा जिसके बारे में आप जानते रहोगे, बाकी 3 आप गेस करके लगा दोगे। इसमें मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस, ठीक है? तो पहला स्ट्रेटजी क्या करोगे? नॉट वाला पढ़ोगे, नॉट दिया है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा है पहला। दूसरा, मैचिंग वाले क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है? उसमें आपके मैक्सिमम और इजी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि 50 चॉइस है ना, 50 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 35। तो हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन मिला हम उस पर एनर्जी खर्च करने लग जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ो, नहीं माइंड में आ रहा है, इसकी डोंट अफ्रेड आउट कि अरे हमारा सब चला जाएगा, इस बार सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग अबाउट अवर सेल्फ इज वेरी रॉन्ग। तो नॉट वाला क्वेश्चन करना है। दूसरा क्या गलती करते हैं? मैचिंग वाला देखना है। थर्ड में, जब क्वेश्चन, अब हमें मान लो 35 में से हमने 25 कर लिया, सिर्फ 10 क्वेश्चन का रह गया, इसमें तो श्योर है ना मार्क्स हमारा 50 आ गया, ठीक है ना? अब ये 10 में से 20 लाने हैं। 20 में से कितने मिस्टेक कर सकते हो? सिर्फ एक क्वेश्चन का, ओनली 1 or 2 क्वेश्चंस यू कैन टेक रिस्क, नॉट मोर देन दैट। तब जब इतनी प्लानिंग है तो अगर आपको 25 में से 30 कर पाए तो नो प्रॉब्लम, आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल मिस्टेक नहीं कर रहे हो। तो ये रेगुलर टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो जब मिस्टेक आप नहीं करते हो तो इवन यू अटेम्प्टेड 30 out of 50, your score is 90+, because this is accuracy score.
जितना आप मिस्टेक करते हो एक्यूरेसी स्कोर इज गोइंग टू डाउन। जैसे महमूद कर रहा था 50% आया, या एक लड़की लक्ष्मी उसका 80% आया, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव मार्किंग की थी। शायद नेगेटिव मार्किंग में उन्होंने 6 to 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग कर दिया, दैट वाज प्रॉब्लमेटिक। यू शुड नॉट गो फॉर द so much, you cannot take such kind of risk. Only you should allow 1 to 2 questions from each section. From each section I am saying. Then also suppose you are taking 2 questions from section A, 2 questions from section B. So you are getting 1/4 na? So 1 marks is deducted from here. And if you are taking risk from section C 2 questions, so how much your marks gone? 2 marks. Right? So almost score is going thousands time by the gap of 3 to 5 marks. आपके JRF से तुरंत बाहर हो जाते हो जैसे आप मिस्टेक करते हो। तो you should not take any risk. I am saying again and again. तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली क्लास करो, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। जैसे हमने अनाउंस किया, तो आप पूरी एनर्जी लगा दो स्टूडेंट की तरह, चाहे जितना भी काम हो, वर्किंग हो, ठीक है ना। तो देखोगे आपका ना सारा कुछ प्लानिंग परफेक्टली हो जा रहा है। तो आपका टारगेट वीक वाइज होना चाहिए, मंथ वाइज होना चाहिए, डे वाइज होना चाहिए। आज सर ने कहा जिन हम पढ़ाएंगे, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कीवर्ड्स बेसिक, जितना भी टाइम हाफ एन आवर 20 मिनट्स का देख लेते हैं, लैपटॉप पे जल्दी देखते हैं क्या कीवर्ड्स है। कोई स्टडी मटेरियल नहीं, कोई बात नहीं। जब आप मार्केट जा रहे हो तो आप कलेक्शन पेन ड्राइव में लेके जाओ सॉफ्ट कॉपी का, कि ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये, सो दैट टाइम वेस्टेज रुक जाए। खाना बनाना है तो दोनों मीटिंग खाना बना रहे हो तो यू कैन सी कि क्या ऐसा बना सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत टाइम सेवर हो, शाम को भी रिपीट ना करना पड़े सेम चीज। जैसे मैं बर्तन वॉश करता हूँ सुबह 6 बजे, वो मेरी एनर्जी होती है, मैं शाम को नहीं कर सकता। खाना बनाता हूँ मैं मॉर्निंग में 6 o'clock 6:30 पे, मैं रख देता हूँ, कुक होता रहता है, फिर आराम से मैं अपना पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, शाम को मैं क्या करता हूँ, शाम को सिर्फ क्लास लेता हूँ और रोटी बनाता हूँ, सब्जी रहती है सुबह की, मैंने खाया और बस हो गया। तो मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन मैं किसी की हेल्प नहीं लेता। लेकिन टाइम स्किल की वजह से, परफेक्ट टाइम स्किल की वजह से, अब जैसे कोई इवेंट है मान लो कॉलेज में, तो आपको अटेंड करना है, आपको उनके खाने का भी मैनेज करना है, कोई नाराज भी ना हो जाए, कोई लेटर भी बनाना है, उनका सारा DA देना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना होता है, पूरा फोकस उस पर बड़ी एनर्जी के साथ। अब मैं भूल गया कि आज मेरी क्लास है क्या है, तो जैसे मैं फ्री हुआ फिर क्लास के लिए आ गए। तो इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, ये पर डे आपको क्लासीफाई करना है। हमने टेस्ट दिया, अनाउंस किया, बड़े हैप्पीनेस के साथ रिचार्ज होके कि सर हमें टेस्ट देना है, आज हमें 98% स्कोर करना है, आप कितना भी टफ क्वेश्चन दे दो, आई कैन क्रैक। तो ये नहीं है कि हमने सिलेबस पढ़ा नहीं है इसलिए कम आया, नो, इसके लिए सीखना है कि कितना कम मिस्टेक करते हैं, और जो भी नॉलेज है उसमें हमने क्या डिसीजन ऐसा लिया कि आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 70 जो भी क्वेश्चन दिए थे, एटलीस्ट हमारे 40 जो भी डाले उसमें से सिर्फ एक नजर आया कि गलत है, सिर्फ एक। क्या ये कर सकते हैं? अगर एक गलत आ रहा है तो जब हम 50 क्वेश्चन भी करेंगे आउट ऑफ 50, तब भी उसमें मैक्सिमम एक क्वेश्चन को ही चांस दे पाएंगे। ये चीज होती है। डाउट क्यों होता है? डाउट होता है व्हेन यू आर एनालाइजिंग टफ क्वेश्चन ओवर द इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। हमारी एक बच्ची है, उसने 98 स्कोर किया, वो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। 98 स्कोर किया, 1 मार्क्स से रह गया, 99 आ जाता उससे ज्यादा। मैंने पूछा क्या किया तुमने, कहाँ पे गड़बड़ी? सेक्शन बी में उसने सारे टफ क्वेश्चन किए, इजी क्वेश्चन छोड़ दिए, मैचिंग वाले। मैंने कहा देखो, एनर्जी भी लगाई, पावर भी लगाया, और उसका 6 मंथ से 1 ईयर तक वेस्ट हो गया। मैं उसको क्लास का दिया कि तुम डेली क्लास किया करो, उसकी भी सेम प्रॉब्लम है, क्लास के टाइम पे एकदम बिजी हो जाती है। मैंने कहा क्लास के टाइम पे आपको फ्री रखना है, सारा काम पहले करके खत्म करो, दैट इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट स्किल। आपको पढ़ाई ही आगे ले जाएगी, और उसी पढ़ाई से अगर आप समझौता कर रहे हो तो फिर आप कैसे आगे जाओगे? आप जो कर रहे हो फिर वहीं रह जाओगे ना, क्योंकि आपका 90% एनर्जी वहीं जा रहा है। आपको एनर्जी देने वाली चीज, प्रोग्रेस देने वाली चीज, सैलरी देने वाली चीज, एक है ना, फेम देने वाली चीज, नेम देने वाली चीज, पोजीशन देने वाली चीज, तो आपकी ये स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड के लिए डेली आपको फाइट करना है, डेली 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 डेली, देयर इज नो ऑप्शन। तो एनीथिंग एल्स?
यू वांट टू डिस्कस? बहुत ज्यादा लेक्चर होता है। No, sir. अच्छा, एक टीम बनाओ। हाँ, एक लास्ट सजेशन रह गया कि ऑलवेज, है ना, कभी हम कम पढ़ गए, पूजा ने कि चलो कह दिया सुमंता से, यार तुम पढ़ाई कर लो, कल टेस्ट है, क्या कर रही हो? एक ऐसा दोस्त भी होना चाहिए, है ना, जो आपको ट्रिगर करे कि अरे क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई करो, तुम क्लास की तैयारी करो, रिवीजन करो, उसमें मतलब नोट्स नहीं है, चलो मैं नोट, है ना, ये बुक ले लो, ये पीपीटी ले लो, है ना, मतलब आपको फुल कर दे, रिचार्ज कर दे। टीम अच्छी होनी चाहिए। पर्सनल अटेंशन तो ओवरऑल होनी चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, देन एवरीथिंग गॉन। यू आर नॉट रिचार्ज, यू आर नॉट मोटिवेटेड। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड करना है। ऐसे लोगों से जुड़ना है जो मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, करो करो करो, उनसे जुड़ना है, राइट? देन यू कैन अचीव द गोल। मैंने क्या क्या स्लाइड बनाया था, तो ये देख लो एक बार जरा। प्रियोरिटाइजिंग करना है, शेड्यूलिंग करना है, कीप टू डू लिस्ट डेली रखो, और रेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं कि कर करके थक जाओ, है ना। तो एक्शन में मोड में रहो, शेड्यूल मोड में ना रहो, एक्शन मोड में, डू लेटर मोड में मत जाओ, हाई एजेंसी मोड में जाओ, राइट? बिकॉज हम क्या करते हैं, टेस्ट है, अरे छोड़ो, आई विल, माना नेक्स्ट वीक दे लेंगे, फिर आप देखो नेक्स्ट वीक तो आपका आता ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। टाइम मैनेजमेंट, काउंट करो फिंगर पे, आज हमने क्या क्या टास्क है, क्या क्या टू डू टास्क है, कौन सा मोस्ट अर्जेंट है, प्लान करो वेल, नोट करो, देन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डीलिंग विद स्ट्रेस बिगेस्ट प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जो एनर्जी चली जाती थी पहले, आईएएस की तैयारी होगा कि नहीं होगा, है ना, बच्चे ना, साथी, बहुत सारे दोस्त वो करते थे, डिमोटिवेट करते थे, अरे वो तो 8 साल से तैयारी कर रहा है, कुछ हुआ? तो तब बाद में मैंने सीखा कि इनको तो लात मार के भगाओ, किक देम, है ना, आउट ऑफ योर लाइफ। जो ऐसी बातें करते हैं, अरे 8 साल से तैयारी करते, कुछ हुआ? उसने कुछ किया, इसने कुछ किया। दुनिया की निगेटिव चीजें जो इनके पास कलेक्शन भंडार है, उनको मार के अपनी लाइफ से भगा दो। कीप ओनली विद द फ्रेश थिंग। जैसे फ्रेश खाना खाते हैं ना, फ्रेश आइडिया के साथ काम करो, फ्रेश मोटिवेशन के साथ काम करो। वाई यू कैन नॉट डू इट? अपना जो कमियां है, अपनी जो लैकनेस है, अपनी जो डिमोटिवेशन फैक्टर्स की लिस्ट बना लो। किससे डिमोटिवेट हो रहे हो, कौन से फैक्टर तुम्हें डाउन कर रही है? जब तुमने सेलेक्ट किया था तो वही आपका कैरियर बहुत अच्छा था, अभी 2-3 साल से सक्सेस नहीं मिल रही, इसलिए खराब नहीं हो गया, कुछ आपकी कमी है। तो एवरी हर्डल यू मस्ट रिमूव, ठीक है ना। तो ऑलवेज गोल सेट करो, पर डे का गोल सेट करो, मंथ का, ईयर का, डिसीजन फास्ट लिया करो। जैसे किसी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी कि सर चलना है घूमने, यार कल का दिन है बहुत अच्छा है, छुट्टी भी है। हमने डिसीजन लिया मंडे की शाम को, मंडे को सुबह जाना था, हमने डिसीजन कब लिया? मंडे की इवनिंग को। तो हमारा जो फन फैक्टर था, आई हैव किल्ड माई फन फैक्टर, दैट टाइम विल नॉट कम अगेन। क्विक डिसीजन लेना सीखो, और जो यस मोड में डिसीजन लेता है, यस आई विल डू, तो उसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। तो ये भी कुछ सजेशंस है। ऑर्गेनाइज करो टास्क को, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब अब जैसे खाना बना रहे हो, ठीक है, उस समय कैसे लाइव क्लासेस ले सकते हो, है ना? बैठ जाओ, नोट्स लो प्रॉपरली, सुनो ध्यान से, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होगा। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना, मेडिटेशन बहुत जरूरी है ना। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करना है, मिनिमम। ऐसी जगह सेलेक्ट करो जहां पे कि, और लाइफ में उन लोगों को किक आउट करो जो डीमोटिवेटेड है, क्योंकि वंस टाइम गॉन यू हैव एम्प्टी हैंड, कुछ भी नहीं आपके हाथ में। और ब्रेक लेते रहो, चाय पीते रहो, म्यूजिक सुनते रहो, बाहर टहलते रहो, है ना। मतलब आंखों को भी आराम देना है। 30 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद योर आईज आर ऑलमोस्ट सोने के मूड में आते हैं। थोड़ा रिलैक्स चाहिए उसको, इसका मतलब थोड़ा रिलैक्स दो, टहलो। मैं भी 2 घंटे क्लास लेता हूँ, तो मैं 1 घंटे टहलूंगा, चाहे रेडी है मैं पीऊंगा, टहलूंगा। तो मुझे अपने आप को भी मोटिवेट करने का, रिचार्ज करने का टाइम देना है। मेडिसिन प्रॉपर लो अगर कोई चल रही है, ठीक है। अर्जेंट टास्क को हमेशा माइंड में रिवाइज करो, फिर आपको जब टाइम मिलेगा यू विल अटैक। और अपना लास्ट ईयर का एनटीए स्कोर याद रखो, और उससे आगे बढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है उसको लिख के किसी से डिस्कस करो, यार ये हमने किया, ये हमने किया। तो वो सजेशन नहीं देगा, लेकिन आपके माइंड में खुद ही आ जाएगा कि यार सेल्फ एनालिसिस, है ना, इसको कहते हैं
सेल्फ एनालिसिस, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के चक्कर में बहुत स्टूडेंट पड़े रहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी बेटर है, बशर्ते टाइम सेव हो। अब आपको 6 घंटे लगते हैं ऑफलाइन क्लास लेने के लिए, जाने के लिए 6 घंटे आने के लिए, या 2 घंटे भी जाने आने लगते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ टाइम वेस्टेज। और क्या स्टडी करके, मतलब उसमें जो स्टडी किया ऑनलाइन में, यू कैन इंक्रीज, यू कैन यूटिलाइज दोस 2 आवर्स इन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन पर डे, क्योंकि ये पर डे लॉस हो रहा है। बुक तो सेलेक्ट करो वेरी वाइजली, बुक एंड स्टडी मटेरियल, है ना। बुक तो इंस्टेंटली आपको रखनी ही पड़ेगी, चाहे ई बुक रखो, तो लैपटॉप रहेगा तो यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी, नहीं तो सबकी चीज की हार्ड कॉपी रखनी पड़ेगी, ठीक है। हाउ मच मार्क्स टू ईच सेक्शन, कितना मार्क्स आप ला सकते हो इस सेक्शन में, इसका टारगेट बना लो अभी से कि आपको एटलीस्ट 7 into 2 इस सेक्शन ए में लाना ही लाना है 14 मार्क्स। सेक्शन बी में आपको कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करके आना है, मैक्सिमम को रखना है टारगेट, ठीक है। यहाँ 8 कर लो, 8 दूनी 16, 30 into 2 हमें 60 करके आना है, और 25 का 25 सेक्शन सी में करके आना है, क्योंकि ये 100 मार्क्स। फाइव बोलते हैं ना ऐसे कि हमें सिर्फ उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए जितने आपको बिल्कुल श्योर हो कि आपने बिल्कुल सही करे हैं। अच्छा ये बताओ, नेगेटिव मार्किंग है तो हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि व्हाट अबाउट दोस्त की आपने क्वेश्चन आपने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, डाउट हो रहा था थोड़ा, लेकिन जैसे बाहर आए एग्जाम के उसका आंसर याद आ गया, फिर इसको क्या बोलोगे। हो सकता है कि हमें जब बाहर जाके जैसे आंसर है, वो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है सही याद आया हो सकता है गलत याद आया हो। नहीं सही याद आया। जिन क्वेश्चन कई बार हम जिन क्वेश्चन के लिए ना बिल्कुल श्योर होते हैं ना कि नहीं एग्जामिनेशन हॉल में यही आंसर है, सो कई बार जैसे बाहर आते हैं तो वी आर लाइक कि ओ शिट यार मैंने ये कुछ गलत कर दिया। हाँ, मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। हमारे मेमोरी में जैसे लेटेंट पीरियड भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने जैन में ये सब्जेक्ट पढ़ा बायोकेमिस्ट्री का, ठीक, और क्वेश्चन आया अगस्त में, सीएसआर के एग्जाम था अगस्त में, तो क्या आप सोचते हैं कि इमीडिएटली आपका कंप्यूटर इतना फास्ट है कि ये सारा नॉलेज इमीडिएटली आप क्वेश्चन देखोगे और याद आ जाएगा। तो ये स्टेट कह रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट कहलाती है, जो फास्ट आपने क्वेश्चन देखना है, आंसर पढ़ना है एंड लीव फॉर द नेक्स्ट, क्योंकि इसको आने दो ना, अभी मेमोरी में चला गया, अब ये सर्च कर रहा है माइंड आपका, इसको आने दो ना बिट्स एंड पॉइंट्स में सारा डेटा, ये डेटा रिकवर कर रहा है आपके ब्रेन से। तभी तो हम बाहर जब क्वेश्चन यहाँ मार्क कर लेते हैं गलत, और बाहर जाके हमें सही याद आ जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमारा ब्रेन भी कंप्यूटर है बेटा, इसको टाइम दो थोड़ा। आप याद करो कि किस मंथ में पढ़े थे, अगर अभी फ्रेश पढ़े हो 1 घंटा पहले, तो आई एम श्योर कि 100% यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ये सही है, हमने जो मार्क है कि नहीं है। एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। लेकिन जब हमने पढ़ाई जैन में है 6 महीने पहले, तो उसको डेटा को आने तो दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो गलत मार्क कर देते हैं, क्योंकि दोबारा वापस आना नहीं चाहते। नहीं, दोबारा आना है वापस, इसीलिए हमने कहा पेपर रखो, जो इजी लगता है फटाफट वो 20 क्वेश्चन कर लो। अब हमें टारगेट बनाया 30 तक, 10 को और सर्च करना है जिसमें कि हम बेटर कर सके। तो उसमें हमने क्या हिंट दिया कि थोड़ा क्वेश्चन को नॉट वाले सर्च कर लो, कौन से हैं, है ना, और मैचिंग वाले सर्च कर लो। अगर मैचिंग वाले करते हैं तो उसको पहले कर लो, तो मैचिंग में ही आपको हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाए, और तो आपका ये बढ़ गया 25। अब रहेगी 5 क्वेश्चन की और डिमांड रह गई, तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिसमें आपको 90%, 99 नहीं 90% श्योर हो कि ये सही होगा यार, ये लॉजिक है, और वो सही हो जाता है। कोई भी टॉपर या कोई भी क्रैकर ये नहीं कह सकता उसको 100% चीजें याद थी, वो खाली गेस पे ही चलता है, लेकिन गेस वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। ये हमारा सही था, ये हमने जैसे हाईएस्ट जो जाता है, हाईएस्ट जो कट ऑफ जाता है वो आई थिंक 150 के अराउंड जाता है ना। हाईएस्ट मार्क्स में मत जाओ, वो कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे आपका स्कोर कार्ड बनता है, और कितना एक्यूरेट किया किसने। तो जैसे हाईएस्ट में पिछले बार का रिजल्ट मैं एनालिसिस किया था, उसमें मैंने देखा था, जस्ट मिनट, अच्छा, अगर आप देखो कि पिछले बार का मैंने एनालिसिस किया था कि मैक्सिमम
7 क्वेश्चन किया था बच्चों ने, यानी 14 मार्क्स का मैक्सिमम जो आया था, सबसे जो 100% जिसका स्कोर था उसकी बात कर रहा हूँ। उसने 32 क्वेश्चन किए थे सेक्शन बी से। कितना मार्क्स हुआ? 64। और सेक्शन सी से मैक्सिमम 25 मान लो, क्योंकि इतना कर ही लेते हैं। टोटल स्कोर कितना हुआ? 178 आउट ऑफ 200 ना। हाँ, 200। तो आपको इतना स्कोर लाने में क्या दिक्कत है? इतना ला सकते हो। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो परसेंटाइल कैलकुलेट होता है, कितना मिस्टेक ज्यादा किया तो उसकी परसेंटाइल डाउन होती है अपॉन कितने स्टूडेंट टोटल अपीयर हुए। ठीक है ना? मिस्टेक्स को इसीलिए कहते हैं मिनिमाइज करना है, टारगेट को अचीव करना है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 25 1 अटेम्प्ट में उसने सही सही मार्क कर दिया, नहीं, वो 15 ही रहा होगा, इसमें 20 ही रहा होगा, इसमें 5 ही रहा होगा। बाद में आके रिवर्स करके फिर यहाँ पे थोड़ा इंप्रूव किया, थोड़ा यहाँ पे इंप्रूव किया, थोड़ा यहाँ कैलकुलेटेड रिस्क लिया। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, स्क्रीनिंग है ये, सिलेक्शन नहीं है, स्क्रीनिंग है। बंदों को छांटना है, कम से कम लोगों को क्वालिफाई कराना है। टारगेट है ही नहीं गवर्नमेंट का कि 100% जियारत देना है। 11,000 सीट है टोटल जियारत, ओनली 11,000 है ना। 11,000 में से 50% रिजर्वेशन निकाल दो, तो टोटल जनरल कास्ट के लिए बची 6,000 बस। 6,000 में जिसने मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक किया है, थोड़ा कैलकुलेशन किया है, मैचिंग वाले किया है, मतलब ओवर द टारगेट आपको 25 दिया गया था ना कि 25 ही करना है, यहाँ पे 35 का टारगेट दिया हुआ है, यहाँ पे 15 का टारगेट दिया है। कितना मैक्सिमम अचीव करा सकते हैं? सेक्शन बी एंड सी आपके सब्जेक्ट का है, यहाँ तो मैक्सिमम बच्चे ले जाते हैं फुल, क्योंकि यहाँ चॉइस भी 50 है, यहाँ चॉइस भी 75 है, तो 50 क्वेश्चन छोड़ने का मौका है 25 में से। ठीक है, तो फिर भी नहीं हो पाता ना। और अरे यार एफर्ट तो करना। देखो ये चीजें तो टेस्ट प्रैक्टिस में ही डिसाइड हो जाती हैं कि आपका स्कोर और क्या एनालिसिस कहते हैं ना, टेस्ट के बाद जो एनालिसिस है वो मैटर करती है, वो हम कितना कर। तो मैं तो जनरल बात कर रही हूँ ना कि हमें इतनी चॉइस मिलती है उसके बाद भी हम लोग नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कर सकते हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूँ दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज पीपल आर डूइंग, लोग कर रहे हैं, इसी में से लोग इसी में से क्वालिफाई कर रहे हैं। डू यू एग्री? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसी में से? हाँ, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक मस्ट रिवाइज बिफोर द एग्जाम। एक अपना शॉर्टकट नोट्स बना के रखो कि हमें एग्जाम के पहले ये पढ़ के जाना है। ठीक है, ये शुभम 2019 डीबीटी का 10th टॉपर था। अभिषेक सिंह AIR फर्स्ट रैंक 2018 का टॉपर था हमारे यहाँ से। और अजर्सी वेस्ट उड़ीसा से, सुदीप्ता उड़ीसा से, फ्रांसु लखनऊ से, अभिषेक छत्तीसगढ़ से, काफी बच्चे, आफरीन जहां लखनऊ से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से 2 बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस किया। थैंक्स ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वी कैन टेक अनदर सेशन। हाँ, नो प्रॉब्लम। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो फिर से हमें आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। mlstutorial.co.in नई वेबसाइट बनाई है और उस पर डिजिटल लर्निंग हम देने जा रहे हैं। कुछ कोर्सेज फ्री रहेंगे, कुछ कोर्सेज पेड रहेंगे। तो उसमें एक नए तरीके का स्कीम शुरू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी मोड में जाना चाहते हैं। तो उनको टॉपिक वाइज है ना, जैसे फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का 10 मिनट का वीडियो, फिर 15 मिनट का वीडियो थोड़ा सा एक टॉपिक पे, फिर 15 मिनट का दूसरा टॉपिक पे। तो ऐसे करके हम वीडियो लेक्चर के थ्रू भी ऑफलाइन मोड की तरह से उनको फैसिलिटी देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। Thank you.